Okay, so a very good morning to you all. Today we will be doing chapter number 5th of your Panorama books. The name of a chapter is Love Across the Salt Desert, and the author of a chapter is Keki N. Daruwala. First, we will be reading about the author. Keki N. Daruwala is a well known Indian short story writer and poet. He was born in Lahore in 1937. K.K. Daruwala began his career as a government servant and was also a member of Commonwealth Observer Group of Zimbabwe. In 1980, his writings reflect sensitivity to human feelings. He has authored several books and is recipient of Sahitya Akademi Award. So this was about the author. Now we start with the chapter. This chapter is about a love story actually, so of course you all will find it very interesting. So without wasting any time, we start with the chapter. The drought in Kutch had lasted for three successive years. Even when clouds were sighted, they passed by, ignoring the stricken country. The monsoons had, so to speak, forgotten the land. The run lay like a paralyzed monster, its back covered with scab and scar tissue and dried blister skin. The earth had cracked, and it looked as if chunks of it had been baked in the clay and then embedded in the soil crust. The cattle became thin and emaciated. The oxen died. The camel alone survived comfortably, feeding on the bawal, a camel thorn. Then one day the clouds rolled in like the wineskins, and the lightning crackled, and the wineskins burst. Though 2 years have passed since the drought ended, everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. This is how she came. तो ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में क्या जाएगी, फ्लैशबैक पे जाएगी, है ना. कभी हम मूवीज़ देखते हैं ना, एकदम से वो मतलब थोड़ा सा फ्यूचर दिखा के फिर वो पीछे जाती है, फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं. तो ऐसा ही ये स्टोरी है. इन्होंने हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इन्होंने कच्छ है ना, एक डिज़र्ट एरिया है, उसके अंदर ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, उसका एक होता है ना पिक्चराइजेशन करा, उसका चरित्र. अब हम इमेजिन करो है ना कि बिल्कुल भी बादल नहीं है. अगर कोई एक आधा बादल आ रहा है तो बिना बारिश के पास हो रहा है. 2 साल से बारिश की एक बूंद वहाँ पर नहीं आई है. और जो डेजर्ट एरिया कुछ पहले ही वहाँ पे ज़्यादा हरियाली नहीं थी, और अब जब मानसून नहीं आया तो जो थोड़े इक्के दिक्के पेड़ थे वो भी सूख चुके हैं. तो हर तरफ ऐसा लगता है जैसे एक तरफ सूखे हुए पेड़, और एकदम गर्मी के अंदर ऐसा लगता है जैसे वो मॉन्स्टर हैं, और बहुत ही वो बुरा, मतलब कैटल ऑलमोस्ट सारा मर चुका है. सिर्फ एक ही चीज़ है जो वहाँ पे सरवाइव कर पा रही है, वो है कैमल, क्योंकि वो बवाल एक कांटेदार एक पेड़ होता है जिसको वो खा लेता है. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट कैमल कैन लिव ऑन वाटर, विदाउट वाटर ऑल्सो फॉर सेवरल डेज. ठीक है. और फिर क्या कह रहे हैं कि 2 साल बाद बारिश हुई, और बारिश कब हुई, जब फातिमा ने उस गांव के अंदर कदम रखा. नाउ हु दिस फातिमा इज़, वाई शी केम टू दैट विलेज, इज़ ऑल which we'll read further in the story. So all of you listen to it. Very interesting story. What would he not do for her? देखो स्टार्टिंग ही देख लो कि एक लड़का उसके लिए क्या नहीं करेगा. अब उसकी खूबसूरती जो है वो बयान की गई है. Now listen to the words used to show her beauty. The daughter of a spice seller, she was smelt of cloves and cinnamon, whose laughter had timbre of ankle bells, whose eyebrows were like black wisps of night, and whose hair was night itself. For her he would cross the salt desert. तो वो जो फातिमा थी वो एक स्पाइस सेलर की बेटी थी, है ना. उसके जो फादर है वो मसाला वगैरह बेचते थे, तो उसके अंदर लौंग और इलायची की खुशबू आती थी. उसकी जो हंसी थी वो ऐसे था जैसे किसी पायल की झनकार है. उसकी जो आँखों की जो आईब्रोज है वो ऐसे लगती थी जैसे है ना शाम, ढलती हुई शाम है, और उसकी जो आँखें थी वो एकदम गहरी रात थी. शी हैड स्टे, ठीक है, ये उसके हमें ब्यूटी, मतलब उस इतनी खूबसूरत लड़की के लिए, जिसके इसने वर्ड्स भी मतलब ऐसे से यूज़ करे हैं, उस लड़की के लिए कोई भी है ना क्यों नहीं क्रॉस करेगा सॉल्ट डेजर्ट. अब हम आगे कि किसने क्रॉस किया, क्यों क्रॉस किया, ये हम अब आगे अपनी स्टोरी के अंदर कंटिन्यू करते हैं. He had stayed at a day at Kala Dungar, a black hill capped with basalt, the highest in Kutch. He sat in his camel Allah Rakha, free to crop on the bawal trees. At dusk, he paid homage to the footprints of the Panchmai Peer on the hilltop. He left some food there and stirred, beating on his thali according to the custom there. In a few
minutes, jackals materialized and gobbled up the food. This was auspicious. If they had not turned up, he would have considered the ill effects of omen serious enough to have cancelled the journey. A lamp was lighted in peace honor every night on the hilltop, and the flame could be seen all the way from Khavda. Over 100 years earlier, Panchmai Peer had trudged the salt waste serving the people, accompanied as a legend at it by a jackal, repulsive by the habit he used to retire to thorn jungles where apart from his vulpine companions, none else dared to disturb his nocturnal tryst. The custom of feeding the jackals has lingered since then. तो अब जो हमारे हीरो के बारे में बताया जा रहा है कि उसने इतनी सुंदर लड़की के लिए उसने जो है सॉल्ट डेजर्ट क्रॉस करने का सोचा। और सॉल्ट डेजर्ट क्रॉस करने से पहले वहाँ पे एक रिवाज था कि पंचमई पीर की एक किसी छोटे से हिल के ऊपर जो है एक दरगाह थी, वहाँ पे उनको जाके जो है दिया जलाना होता था और वहाँ पे वो खाना रखते थे और फिर थाली बजाते थे। और जैकल होते हैं ना, एक लोमड़ी टाइप का एक एनिमल होता है जो आके अगर वो आपका खाना खा लेता है, इसका मतलब शुभ संकेत है, आप अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर खाना नहीं खाते हैं तो इसका मतलब कि कोई बुरा साया है, आपके लिए अच्छा समय नहीं है, इसलिए आपको अपनी जर्नी जो है कैंसिल करनी पड़ेगी। और ये जो पंचमई पीर की मान्यता है बहुत साल पहले से चले आ रही है। बहुत खूब साल पहले कहा जाता है पंचमई पीर थे जिन्होंने लोगों की बहुत हेल्प करी थी और उनके साथ में एक जैकल रहा करता था। इस तरह से तो जैकल को फीड करने की जो परंपरा बहुत पहले से जो है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, अब जो नजब है उसने उस जो फ्लेम थी है ना, दिया वहाँ पे जलता रहता था, जो खावड़ा बहुत जो लास्ट विलेज था, खावड़ा से भी जो उनका जो दिया जो उनकी हिल टॉप के ऊपर चलता था वो दिखाई देता था। ठीक है, तो नजब जो हमारी फैमिली जो हमारी स्टोरी का हीरो है उसका नाम है नजब। नजब ने उस फ्लेम जो दिए की लौ है उसको बो किया और अपनी जो जर्नी के लिए वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कभी सवाना ग्रासलैंड था लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ ब्राउन डेजर्ट ही था, उसने सारी ह्यूमन हैबिटेशन को छोड़ दिया है ना। इंसानों की जो रिहायशी इलाके थे वो सब पीछे रह गए थे। कुरान जो थी वो लास्ट विलेज थी जो उसने क्रॉस करी थी। ठीक है, कुरान ऑब्वियसली इंडिया की लास्ट विलेज थी। उसके बाद में जो बॉर्डर एरिया है वो स्टार्ट हो गया। बॉर्डर एरिया भी यू नो कि इट कवर्स माइल्स एंड माइल्स ऑफ डिस्टेंस एंड देन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान हैड स्टार्टेड। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भूंगास, दोज 1 room मड हाउसेज सर्कुलर एट बेस। अब वो कह रहे हैं कि अब जो हैबिटेशन है, जो इंसानी रिहायशी इलाके वो ख़त्म हो गए, तो अब उसको अगले 3 दिन तक एक भी झोंपड़ी, भूंगा मीन्स झोंपड़ी हम देखते हैं ना ऊपर से ऐसे टेपर की होती है और मड ऐसे सर्कुलर जो हाउसेज होते हैं भूंगास बोलते हैं, उसको अगले 3 दिन तक वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। उसको दूर दूर तक जो भी दिख रहा है वो सिर्फ मिट्टी मिट्टी और मिट्टी दिख रही है। उसके पास एक छगल था, छगल क्या होता है, ऊँट की खाल से बना हुआ एक पानी का बर्तन होता है जिसके अंदर पानी जो वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और वो क्या उस पानी को वो पी नहीं सकता क्योंकि ऑफकोर्स उसको इतना लंबा सफ़र करना, उसको इतना टाइम, तो जब भी प्यास लगती है तो वो सिर्फ अपने लिप्स को उससे गीला कर लेता बिकॉज आगे कहीं पानी भी नहीं मिलने वाला था और उसको जो पानी है वो सेव करके रखना था। ठीक है, अब हमको नजब के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा था, है ना। अभी तो हमको बताया एक लड़की, अभी हमको जो पार्ट्स के अंदर बताया जा रहा है, सबसे पहले हमें एक डेजर्ट एरिया जहाँ पे 2 साल से सूखा पड़ा उसको इन्होंने डिस्क्राइब करा है। फिर उन्होंने फातिमा जो लड़की है उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करा है। फिर इन्होंने पंचमई पीर के बारे में बताया है और नजब ने उसने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी, उसके बारे में बताया। अब हु इज़ नजब, नजब कौन है, वो कैसा है, ये हमें अब बता रहे हैं कि नजब जो है वो अपने फ्रेंड्स के अंदर आज तक उसने कोई भी होता ना ब्रेवेडो का एक्ट नहीं करा। आज तक उसने कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करा कि लोग उससे कहें कि हाँ मतलब कितना एडवेंचरस है या ऐसा, उसने कोई भी काम नहीं करा। मतलब वो इतना शर्मीला लड़का था कि अगर उसके सामने किसी लड़की का नाम तक ले दिया जाए तो ही वुड हैव ब्लश्ड, वो ब्लश करने लग जाता था, उसके चेहरे पे लालिमा आ जाती थी। इतना इंट्रोवर्ट, इतना ड्रीमी बच्चा, किसी भी एक्ट कभी भी उसने आज तक कोई बहादुरी का काम नहीं करा। उसके फादर, ठीक है, नजब हमारा हीरो है, उसके फादर का नाम है आफ्ताब। जो आफ्ताब है वो हमेशा उनको एक टेंशन रहती थी। क्या टेंशन रहती थी कि जो मेरा बेटा है ये जितने भी मेरे पूर्वजों ने जो भी धन पैसा पूंजी जो भी कमाया है वो सब ये लुटा देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्यों ख़त्म कर देगा? इसलिए नहीं करेगा कि वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है, वो बहुत खर्चा करता है या वो फ्रेंड्स पे लुटा देगा या कोई गलत काम कर लेगा। नहीं, वो क्यों ख़त्म कर लेगा कि ही इज़ सो इंट्रोवर्ट
कि अगर बाई चांस वो किसी को कुछ बेचेगा सामान तो वो सामने वाले से अपने पैसे भी नहीं मांग पाएगा, मतलब ही विल नॉट इवन आस्क फॉर द मनी फॉर द थिंग्स विच ही इज़ गिविंग, ही इज सेलिंग, उन चीज़ों के लिए वो पैसे नहीं, ही विल मतलब ही इज़ टू शाय टू चार्ज मनी फॉर वॉट ही सेल्स ऑल्सो। सो इस वजह से आफ्ताब को हमेशा ये फ़िक्र खाई जाती है कि मेरा बेटा जो है सब कुछ मतलब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ही विल नॉट बी एबल टू आस्क फॉर हिज राइट्स ऑल्सो। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि जो नजब है वो इससे पहले जो है रन, जो ये डेजर्ट एरिया की अभी हम बात कर रहे थे, ये 4 बार पहले इसको क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी मतलब 4 बार पहले वो क्रॉस कर चुका है। 20 साल का वो भी पिछले महीने ही हुआ है, मतलब 18-19 साल की एज में वो 4 बार पहले उस डेजर्ट को क्रॉस कर चुका है। लेकिन हमेशा उसके साथ या तो उसके फादर होते हैं या एक स्मगलर जिसका नाम है जमन। ठीक है, जमन होता है। अब हमें जमन के बारे में बताया जा रहा है कि जमन एक स्मगलर है और उसके बहुत इलीगल ट्रिप्स जो है वो होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, सिंध में। और हमेशा वो क्या करता है, जब भी वो गया है, उसने 4 बार पहले गया ना नजब, जब ये गया है तब ये तेंदू लीफ लेके गया 500 रुपये की, और बॉर्डर के पार उसने 1200 रुपये में वो बेचा है। मतलब इनको इतना प्रॉफिट, 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, और जब वापस आता है तब वो वहाँ से गारमेंट्स वगैरह लेके आता है, और ये यहाँ पे है ना, और उसके अंदर जो उसमें बीच में उनको थोड़े बहुत जो रिश्वत भी देनी पड़ती है, फिर इनके जो ऊँट वगैरह उनको चराने के लिए भी, तो उनको फिर भी उनको जो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, और एक बार जैसे ऐसे ही एक ट्रिप जब वो गया हुआ था ट्रिप पे बॉर्डर पार, वो अपनी मम्मी के किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ रुके थे, जिस रिश्तेदार का नाम था काले शाह, जो कि एक स्पाइस सेलर था। और नजब के फादर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये तुम्हारे मतलब मम्मी के कोई दूर के रिश्तेदार हैं। और काले शाह जो है वो देखने में होता है ना एक धूर्त किस्म का आदमी जो लगता है, बहुत ही माइंडेड आदमी, और वो क्या चेक्स की एक धोती बांध के रखता था, है ना, और वो खुद भी ऐसे ना सबको ऐसे शतरंज की तरह यूज़ करने वाला टाइप आदमी था, बहुत ही माइंडेड ऐसे, है ना, बहुत ही शातिर टाइप हम बोल सकते हैं। उसको देख के ही पता चल गया था कि वो किसी से जल्दी से किसी की बातों में नहीं आ सकता, बहुत ही खतरनाक टाइप का वो आदमी है। ठीक है, उसके बारे में तो इसने बता दिया। लेकिन उसकी बेटी फातिमा, वो कह रहे हैं उसकी फातिमा है वो एक हूर बोलो, परी बोलो, इतनी सुंदर, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत कि जैसे हम जानते हैं पाताल लोक में सिर्फ अंधेरा है अंधेरा, वो कह रहे हैं कि उसको बस ले जाके अगर वहाँ खड़ा कर दिया जाए तो उसकी आंखों की चमक से पूरा पाताल लोक भी रोशन हो जाएगा। वो इतनी खूबसूरत थी, शी वॉज सो 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 ब्यूटीफुल, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसने उसको देख के स्माइल करी, उसने इसको देख के स्माइल करी। अब ये बता रहे हैं कि जो फातिमा थी उसकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। उसकी एंगेजमेंट किससे हो गई थी? उन्हीं के गांव के एक लड़के से जिसका नाम था महफूज अली। ठीक है, अब जो महफूज अली, अब फातिमा उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो महफूज अली था वो एक स्टैमरर था और थोड़ा सा चलने में भी उसको प्रॉब्लम थी। ठीक है, और मतलब है ना कि ऐसा ना वो देखने में सुंदर है, ना वो अच्छे से बोल रहा है, ना पर उसके फादर उसकी शादी करना चाह रहे थे और ये उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, अब नजब और फातिमा के बीच में बिल्कुल भी वर्बल बात नहीं हुई है आपस में, इनकी सिर्फ आंखों ने आपस में बात करी। ठीक है, मतलब उन्होंने आपस में बात नहीं करी, लेकिन उनकी आइज़ ने आपस में बात करी, इशारों के अंदर दे हैव डिसाइडेड, है ना। फातिमा ने उससे पूछ लिया है क्या तुम वापस आओगे, और नजब ने उससे प्रॉमिस कर दिया कि मैं वापस आऊँगा और क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और ये कब की बात है, जब वो अपने फादर के साथ गया था और अपने उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज वो वहाँ जा रहा था। ठीक है, मतलब अभी उसको नहीं पता है कि फातिमा उससे रियली में लव करती है नहीं करती। फातिमा को नहीं पता है नजब उससे प्यार करता नहीं करता, क्योंकि बात तो उनमें हुई नहीं है, लेकिन अपने पॉस्चर से, अपनी आइज़ के एक दूसरे स्माइल देख के इन्होंने एक दूसरे की बात समझ ली है। एंड नाउ लुक दिस नजब, द मोस्ट इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बॉय, ही इज़ रेडी टू क्रॉस द डेजर्ट एरिया ऑफ रन टू गो एंड ब्रिंग हिज लेडी लव। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, जब से वो खावड़ा वापस आया अपनी उस जर्नी के बाद, जब वो काले शाह के यहाँ रुके थे, नजब ने हमेशा से प्लानिंग करी कि वो कहाँ से वापस जाए, कैसे वापस जाए। ठीक है, लेकिन रन के बारे में ऐसा नहीं था जो उसको ना पता हो। वो डे लाइट के अंदर तो
क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं कर सकते ना। एक डेजर्ट एरिया के अंदर हम डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं चलती ना कि क्या मतलब होता है कि हम लैंडमार्क्स बना लेते हैं कि यहाँ ये घर है, इसके आगे ये आ जाएगा, इसके आ जाएगा, लेकिन डेजर्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्लेन वो जो फील्ड है मड की, उसके अंदर आप कैसे लैंडमार्क्स बनाओगे अपने। तो मतलब रात को तो छोड़ो, रन ऑफ कच्छ को दिन के उजाले के अंदर भी क्रॉस करने का नहीं सोच सकता। और नजब जो एक 20 साल का लड़का है, लेकिन फिर भी उसने डेयर किया है ऐसा करने की, है ना। और एक सुबह जो आफ्ताब कौन है, नजब के फादर है, जो वो उठे तो उनको किसने उठाया, जमन ने उठाया। जमन क्या कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से उसका जो गेट बजा रहा था और वो नजब के बारे में पूछ रहा है। और अब आफ्ताब, उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है कि नजब क्या है, कहाँ है, ठीक है। तो अब जो आफ्ताब है वो उससे को गुस्से में बोल रहा है कि नजब वो रात तक लेट सो रहा था, कि कहीं होगा, सो रहा होगा, कुछ भी करोगा, तुम्हें क्या, हु आर यू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे। तो जो जमन है वो उसको बोल रहा है कि तुम किसको बेवकूफ़ बनाने की बना रहे हो आफ्ताब मियाँ, जो तुम्हारा बेटा है वो भाग चुका है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो कैमल है वो भी नहीं है। और ऐसी वहाँ पर ये हवा, मतलब ऐसा माना जाता था कि उस गांव के अंदर कोई आदमी अगर अपने ऊँट के साथ मिसिंग है तो इसका मतलब वो ज़रूर बॉर्डर पार ही गया है। और जमन स्मगलर था, वो इलीगल ट्रिप्स करता था और ज़्यादातर सबके अरेंजमेंट्स वही करता था, वहाँ पे पुलिस वालों को पैसा खिलाना विलाना, तो सब उससे परमिशन लेके और उसकी वजह से सब जाते थे। तो अब उसके जो 100-200 रुपये वो नहीं बन रहे थे, तो ऑफकोर्स इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है। अब जो आफ्ताब है उसको पता ही नहीं था, तो वो फटाफट अंदर जाता और वो देखता है कि उसका जो कैमल है वो नहीं था, ठीक है। और उसको बहुत बुरा लगा और वो फटाफट जाके जो तेंदू लीव्स होते हैं, क्योंकि वो जब भी बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो तेंदू लीव्स लेके जाना होता है, वो वहाँ जाके देखता है तो वो देखता है कि तेंदू लीव्स भी वहीं पड़े होते हैं। तो उसको अपनी बेटी की तो कम टेंशन, बोलते हैं कि गधा गया भी और है ना ये और छोड़ के चला गया, ये लेके जाता तो कम से कम पैसे तो लेके आता, कुछ तो करके आता, है ना। और जो नजब जमन है वो बाहर खड़ा खड़ा सब देख रहा है और बोल रहा है कि क्या बेवकूफ़, मतलब किसको बेवकूफ़ बनाने की तुम कोशिश कर रहे हो। तो पूरा जो वर्ल्ड है मुझे वो सोचता है कि तुम्हारा जो बेटा वो बहुत इनोसेंट है, लेकिन वो एक है ना, मतलब बहुत गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी, जैसे ही इज़ सेइंग ही इज़ अ पिग एंड द सन ऑफ अ पिग, बहुत तो उसको बुरा भला कह रहा है, ठीक है। अब उसको बहुत गुस्सा, अब मतलब जो ज़माना है वो इतनी बदुआ दे रहा है कि तुम्हें पता है कि वो रन तो मेरे सपोर्ट के बिना तो रन वो क्रॉस कर ही नहीं सकता। अब वो रेंजर्स उसको देख लेंगे, उसको मार देंगे जान से, ठीक है। और बिना उनको 100 रुपये का नोट दिए बिना तो कोई जा ही नहीं सकता। और वो मतलब एक होता है ना, सटायर के लिए बोल रहा है कि अल्लाह उसको जो सेफली वापस घर लाए, मतलब वो एक्चुअली में उसका जो इंटेंशन है वो गलत है, होता है ना, हाँ देख लेंगे, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, अपन किसी को ऐसे बोलते हैं, मतलब पर बोलना अपन चाहते हैं कि तुम्हारा साथ तो बहुत बुरा होगा। तो वो कहीं ना कहीं वो उसके लिए इल लक प्रे कर रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि अल्लाह उसको सेफली घर लाए। और वो एक्चुअली उस जो मीनिंग है वो उसका एकदम अपोजिट होता है, जो वो न जब वो इग्नोर करता है उसको और जो गेटा बंद करता है वो बोलता है कि, और मन में सोच रहा होता है कि देखना उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी, मतलब उसको अब वल्चर्स और जो ईगल्स है वो सब उसको एकदम नोच डालेंगे, उसको एकदम खा जाएंगे, ठीक है। अब जो आफ्ताब है वो बोल रहा है कि जमन तेरे को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह अपने आप देख लेगा, ठीक है। और उसने उसके चेहरे के ऊपर एकदम से गेट जो है बंद कर दिया, ठीक है। अब जमन तो चला गया, जो आफ्ताब है अब उसको लगा कि भाई मैं मेरी वाइफ को ये न्यूज़ दूंगा तो वो तो घबरा जाएगी कि बेटा अकेला, बहुत छोटा बेटा है और वो एकदम अकेला जो है डेजर्ट क्रॉस करने के लिए चला गया, तो वो तो बेचारी बेहोश ही ना हो जाए। और लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो वहाँ पे बैठी होती है दीवार के सहारे, और उसको देखते ही वो समझ आता है कि उसको तो वो तो ऑलरेडी वो भी उस प्लानिंग के अंदर शामिल है। और वो चिल्लाने लगता है, तो वो बोलते हैं कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा बेटा है वो मेरी गोल्ड की बैंगल्स लेके गया है और वो तुम्हारे लिए वहाँ से जो सिल्क कपड़ा है वो लेकर ही आएगा, मतलब वो वहाँ से क्लोथ्स वगैरह लेकर ही आएगा, ठीक है। अब ये तो उसके गांव में क्या हुआ, खावड़ा में क्या हुआ, ये हमें बता दिया। अब आफ्ताब के साथ क्या हो रहा है, वो डेजर्ट के अंदर चले जा रहा है। अल्लाह रखा, उसका जो कैमल है उसका नाम है अल्लाह रखा, ठीक है। जो अल्लाह रखा है वो एकदम नॉर्मल अपनी पेस उसने बना रखी है, हवा जा रही है, ठीक है। अब वहाँ पे कोरी चेक आ रहा है, ठीक है। और मिट्टी जो है नजब की नाकों के अंदर जा रही है और वो मिल्की वे स्टार्स को फॉलो करता करता जो है वो चला जा रहा है। बहुत डेड एनिमल्स की बोन्स वगैरह आ रही हैं। अब वो पहुंच गया साराबेला, ठीक है, जो काला डूंगर से 20 माइल दूर है, ठीक है।
अब साराबेला में जाके उसने दिन में रेस्ट करा, क्योंकि दिन में अगर हम क्रॉस करते हैं रेंजर्स को तो बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं, क्योंकि दिन में क्या होती है, परछाई होती है। तो एक ऊंट और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ, उसकी परछाई जो है, अगर रेंजर्स को तो दिन में एक ऊंट वो तो मॉन्स्टर जैसे लगेगा, खाली जगह में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो रेंजर्स बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो उसने दिन ढलने की वेट किया कि ताकि परछाई जो है वो ना दिखे, ठीक है। और उसके बाद में जब जो सूरज है वो थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में उसने थोड़ा सा पानी पिया, और शाम के टाइम में उसने अपनी थोड़ी सी खाना, एक जो वो है ना बासी रोटी और प्याज लेके आया था, उससे उसने अपना जो फर्स्ट मील ली, उसको ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच जो भी कह लो, वो खाया। और अब वो सोच रहा है फातिमा के बारे में, और पूरा दिन वो उसी के बारे में सोचता रहा। और अब उसको जो डिस्टेंस था वो भी बहुत कम था, और उसका जो फातिमा का जो ख्याल है, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी जैसे कि कोई लोहे से मार रहा है आपको आग के बीच में, लेकिन फातिमा के ख्याल की वजह से, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ फातिमा, उसको वो गर्मी भी, मतलब उसको वो बर्दाश्त कर रहा था, उसको वो सहन कर रहा था, बिकॉज वो उस गर्मी के बारे में सोच नहीं रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ फातिमा ही फातिमा चल रही थी, ठीक है। अचानक जो है एक वो आया, पैच आया, बादलों का पैच आया, जिसने उसको थोड़ी सी छाया दे दी, ठीक है। और अब वो खड़ा हुआ, उसने अपनी टर्बन वर्बन झड़काया, कपड़े कपड़े सही करे, ठीक है। और उसके बाद में उसने जाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको पता था कि जो कैमल है उसने भी बहुत काम करा है, और जो बीएसएफ और इंडस रेंजर्स है वो देख रहे हैं, लेकिन अब नजब ने जो इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर 1066 है वो क्रॉस कर ली थी बाउंड्री, मतलब अब वो जो है दूसरी कंट्री के बॉर्डर के अंदर घुस चुका था, उसने अपनी इंडियन बाउंड्री को वो क्रॉस कर चुका था, ठीक है। अब जो उसको जहाँ से गुजरना था वहाँ पे आपको एक तरफ जो है हमारी आर्मियों की एक तरफ उनको उस ट्रैक को उसको बाइसेक्ट करना था, वहाँ से जाना था, ठीक है। अब लेकिन वो जो था वो अननोटिस्ड नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास बिनॉकुलर्स वगैरह रहते हैं। उन्होंने ऑफकोर्स उसको देख लिया और उसका पीछा करने की कोशिश करी, और ये भी खूब भागा, लेकिन मिट्टी की वजह से बच गया, क्योंकि जब कैमल और ये दोनों भागे तो मिट्टी उड़ी, और उन्होंने भी, वो भी अपने कैमल्स पे थे, तो इतनी डस्ट उड़ी कि डस्ट में उनको ये नहीं दिखा, एंड एटलीस्ट ही कुड 2 घंटे भागने के बाद में ये जो है कहीं सेफ जगह ऐसे पहुंचा। और 1 घंटे बाद जो है, हाफ एन आवर बाद जो है, डस्ट वो थोड़ा सा सेटल हुआ। उसके बाद में ठीक है, ठीक है। उसके बाद में फायरिंग हुई, बुलेट्स निकल रही है, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ से बच के निकल गया, ठीक है। उसके बाद में जो काफ़ी समय जो है वो उस मिट्टी के जमने में और उसी में लगा, और वो भी मतलब उसको भी नहीं पता था वो कहाँ है। अल्लाह रखा जो है बेचारा वो बहुत थक चुका था, और इसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये मर ना जाए, तो ताकि उसका बर्डन कम करने के लिए इसने उसके पास साथ में चलना शुरू कर दिया, है ना। और बहुत 1 घंटा तक उसके साथ में चलते चलते ये भी एकदम से हो गया था, पैर वैर जल गए थे, और एकदम कांटे भी चुभ रहे थे पैरों के अंदर, और पूरा जो रन है ऐसे ऐसे लग रहा था मिराज है, शेडोज को पता नहीं क्या क्या उसको दिख रहा था, फालतू इधर उधर वॉन्डर करने के बाद में, ठीक है। उसको एक थोड़ी सी जो है फायर दिखी, है ना, और उसको लगा कि अब वो एक रिहायशी इलाके के अंदर पहुंच चुका है, और उसने जो है ईश्वर को धन्यवाद दिया, ही प्रेज्ड अल्लाह, और उसको पता था कि अब वो रेंज के अंदर आ चुका है, अब वो बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर उसने रात होने का वेट किया, और उसके बाद में वो धीरे धीरे से जाके और क्लोव सेलर के काले शाह के दरवाज़े पर था। फातिमा एकदम से अपने उठी, और उसने विंडो बार से देख लिया, और उसको पता था नजब है, और उसकी जो आंखें थी उसकी आंखों ने उस अंधेरे रूम के अंदर रोशनी कर दी। और सुबह होने से, डॉन से 2 घंटे पहले जो काले शाह है वो उसको उठाया गया, क्या दरवाजे के ऊपर नॉकिंग हुई थी, दरवाजे पे जो कांस्टेबल है वो खटखड़ा रहा था, वो कह रहा है कि तुम्हारे घर पे एक स्मगलर आया है,
और कहाँ है वो, कौन है। तो वो काले शाह कह रहा है कि तुम्हारी कसम, मेरे इजाज़त के बिना मेरे घर में या मेरे गांव के अंदर एक चिड़िया भी नहीं आ सकती है, कुत्ते भी मेरी और आज रात तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, और तुम कह रहे हो कि एक स्मगलर आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो जो आया था कांस्टेबल, वो श्योर था कि वो उनके घर पे आया है। वो बोल रहा है कि तुम मुझे जो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, और अभी तो मैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर देखता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तो कह रहा अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि तुम्हारे घर पे स्मगलर है तो तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है। अब जो वो कांस्टेबल कह के गया था, वो काले शाह के दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्यों कह के गया, कौन आ गया कौन नहीं आ गया। और सुबह जब फातिमा उसके लिए गरम दूध लेके आई तो उसने बोला कि आपके लिए एक गेस्ट आया है, और वो रात को जो गाय वगैरह का, जो जानवरों का तबेला होता है, उसके अंदर रहा था, ठीक है। 2 मिनट के लिए तो वो एकदम डर गया था क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था, ठीक है। एक स्मगलर इन द हाउस, और जो पुलिस है वो इधर उधर घूम रही है और पुलिस को शक भी है हम पे, ठीक है। फिर जब नजम उसके पास आया और फिर वो आके बोलता है ना, जब उसके पास तेंदू लीफ नहीं होती तो उसको और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा है एक तो तुम बिना बताए आ जाते हो, उसके बाद में पुलिस को अपने साथ लेके आ जाते हो, और उसके बाद में जो तुम है वो तेंदू लीव्स भी लेके जाते हो। तुम्हारे साथ जो ट्रेड करके तो मैं एकदम घोर घाटे में चला जाऊंगा, है ना। मुझे पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी, मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, और एक तुम खाली हाथ और आ गए हो। लेकिन नजब बोल रहा है, नजब को पता था कि ये इसने जो चेस वो पहन रखे है तो इसके साथ चेस ही खेलनी चाहिए। तो वो बोलता है, वो अपना जो गोल्ड बैंगल्स वो अपनी मदर के लेके आता है, वो उसको देता है कि चाचा जान मैं आपको गोल्ड के अंदर पे करूँगा। अब अगले 2 दिन जो काले शाह को सोना दे के बहुत खुश हो जाता है। अगले 2 दिन जो है वो मार्केट के अंदर बिज़ी रहता है, उसके लिए मसाले वगैरह खरीदने के, और अल्लाह रखा को कहीं दूर भेज दिया ताकि वो किसी को नोटिस में ना आए ग्रेज करने के लिए, ठीक है। वरना एक नया कैमल अगर उस एरिया के अंदर दिखा जाए तो काफ़ी सारे लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं और पुलिस को पता चल जाता था। अच्छा, नजब वैसे तो कैटल शेड में सोता था, लेकिन रात को लेट वो फातिमा के रूम में चला जाता था, और तब फातिमा उसको बोलती है कि मेरे घर वाले मेरी महफूज अली से शादी करना चाहते हैं, वो मेरी मदर की फैमिली का कोई है, ठीक है। और वो बच्चे उसकी मिमिक्री करते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे कोई पागल है, और बस यही कमी है कि लोग उसको पत्थर से नहीं मारते, बाकी उसमें और किसी पागल इंसान के अंदर कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में उनके फर्स्ट लंच के बाद में देवर ऑफ, और वो उसके लिए वेट कर रहा था विलेज के बाहर, और इशारों इशारों में उसने कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे वेट करूँगा, ठीक है। और वो आ गई थी वहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी, और वो अपना गांव, अपनी कंट्री सब कुछ छोड़कर एक नई कंट्री के अंदर जो है एंटर कर रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जो रही हूँ। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई थी, अपने प्यार के साथ इलोप कर रही थी, क्रॉसिंग डेजर्ट कर रही थी, जो फिज़िकली सिम्बॉलिकली 2 कंट्रीज़ को डिवाइड करता था, ठीक है। इसका मतलब उसके लिए सिर्फ इसका मतलब था कि उसकी बोली के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। सिंधी से अब उसको कच्छी लैंग्वेज जो है वो बोलनी पड़ेगी, ठीक है। और नजब कैमल को जितना तेज़ी से चला सकता था चला रहा था। वो सारा बेला आए, अब वो थक चुकी थी और वो सो चुकी थी, उसको नींद आ गई। जब वो उठी तो उस टाइम जो आकाश के अंदर जो है बादल आ गए थे, और उसका जो आना है वो बहुत ही शुभ संकेत था। हर जगह जो है सिर्फ ऐसे लग रहा था कि खूब सारे बादल बादल आ गए हैं, और जैसे ही वो खावड़ा आए तो उस तरफ जो है बिजलियाँ कड़कने लग गई जब वो अपने गांव के पास पहुँचे, ठीक है। और बिजली कड़क रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी। तो उस रात आफताब ने 3 बार अपना गेट खोला, उसको लगा कि कहीं मेरा बेटा वापस आ गया, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि कोई नॉक कर रहा है, लेकिन जब भी गेट खोलता उसको कोई भी नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अब जो नॉकिंग हुई थी गेट पे वो परसिस्टेंट थी, वो बार बार हो रही थी, इससे ये श्योर था कि कोई नॉक ही कर रहा है, हवा नहीं है, क्योंकि वो बार बार हो रही थी। और उसके बाद में जब ही अनलैच द डोर, जब उसने उस डोर को खोला तो उसने देखा कि अल्लाह रखा उसके सामने खड़ा है, ठीक है। और बारिश हो रही थी, 2 साल के बाद बारिश हो रही थी, ठीक है। और आफताब ने उसको मतलब बहुत ही एक रिलीफ की साइन लिया जब उसने देखा कि उसका बेटा आ गया है, और वो उससे पूछ रहा है कि ऑफकोर्स बाप है, वो बहुत खुश तो हुआ है, लेकिन वो होता है ना फादर्स जो अपना अफेक्शन शो नहीं करते, वो उसको बोल रहा है ऐसे गुस्से में थोड़ा सा कि क्या लेके आए हो तुम, तो कुछ लाए भी हो क्या। और उसका जो बेटा है वो बोलता है येस, और वो थोड़ा सा साइड में हो गया और फातिमा को उसने आगे कर दिया।
और बारिश जो है एकदम ज़ोरों शोरों से होने लग गई। और इस तरह से फ़ातिमा के उस गांव में कदम रखते ही 3 साल का जो वहाँ पे ड्रॉट पड़ा था वो एकदम से चला गया। सो द स्टोरी लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट नरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल एंड डिटर्मिनेशन। एवरी इंडिविजुअल इज़ केपेबल ऑफ अचीविंग रिमार्केबल फीट्स प्रोवाइडेड ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल टू डू सो। सो अगर हमारे अंदर है ना, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ ए वे। अगर हम कुछ करने का सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं रोक सकता। एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो नरेटर है, जो ऑथर है, उसने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें बताया है कि जिस तरह से एक 20 साल का लड़का व्हेन ही वांटेड टू, है ना, गो फॉर हिज लेडी लव, उसने क्या क्या स्ट्रगल्स किए और वो कैसे वहाँ पहुँच के और अल्टीमेटली उसको लेकर भी आ गया। इसी तरह से लाइफ में अगर हम कुछ अचीव करने के लिए हम ठान लेते हैं एंड व्हेन वी आर डिटरमाइंड, देन नो वन कैन स्टॉप अस। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.